Hello students, how are you? I hope all of you have enjoyed your vacations, right? Today we are going to start our next chapter, subject verb agreement. What is subject verb agreement? It means that the person and number of subject of a clause determine the person and number of the verb it will take. इसका मीनिंग ये है कि पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है या प्लूरल वर्ब लेनी है. थंब रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Normally, a singular subject takes a verb in the singular form and a plural subject takes a verb in the plural form. So, singular के लिए singular, plural के लिए plural. So, how to achieve subject verb agreement? First of all, find the subject. After finding subject, check. Is it singular? Two possibilities are there. Yes, it is singular, and no, it is plural. If it is singular, is the subject I, that means first person? Is the subject you, that means second person? Is the subject he, she, it, this, that, or third person? So, first person, second person, third person. First person singular. Use a singular verb such as am, do, was, have. Second person singular. Use a plural verb such as are, do, were, have. And third person singular. Use a singular verb such as is, was, does, has. If it is not singular, it is plural, then use a plural verb such as are, do, were, have. Always remember, and usually makes a subject plural. जहाँ पे भी and use करेंगे, subject plural हो जाएगा. Additive phrases like along with, in addition to, as well as, accompanied by, together with, do not form compound subjects. ये compound subjects नहीं बनाती हैं ये phrases. The verb will agree with the subject preceding them. Verb subject के accordingly ही चलेगा. In additive phrases के accordingly नहीं चलेगा. In phrases like either or, neither nor, the verb agrees with the noun nearer to these phrases. अगर phrases either or, neither nor use करते हैं तो जो वर्ब है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा जो नाउन के नियरर होगा. कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सिंगुलर. कलेक्टिव नाउन्स 99% केसेस में सिंगुलर होती है. Indefinite pronouns like each, every are usually singular and take singular verbs. जो indefinite pronouns हैं वो singular ही होती हैं और उनके लिए singular verb ही यूज़ की जाती हैं. The pronouns some, any, none or more and most can be singular or plural depending upon the context in which they are used and take a singular or plural verb accordingly. जो ये प्रोनाउंस हैं सम, एनी, नन, मोर, मोस्ट, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज़ किया जा रहा है. उसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी. द यूज ऑफ फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. फाइनाइट वर्ब है जो सेंटेंस में वो कौन डिसाइड करता है? नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट. ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, गोज टू स्कूल. I, you, go to school.
फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ. गो. वी, यू, ऑल प्लूरल. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. दे गो टू स्कूल प्लूरल. The modals can, could, shall, should, will, etc. do not change with the change in the number and person of the subject. अगर कोई भी मोडाल है तो वो any change in number और person के कारण change नहीं होगा. The principal verb is the past form, participle form and infinitive form also does not change with the change in the number and person of the subject. जो प्रिंसिपल वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में हो, पार्टिसिपल फॉर्म में हो या इन्फिनेटिव फॉर्म में हो, वो चेंज नहीं होती विद चेंज ऑफ एनी नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. द ऑक्सिलरी वर्ब बी चेंजेस इन बोथ द प्रेजेंट एंड द पास्ट फॉर्म. बी दोनों में चेंज होती है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी. प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में was were. The auxiliary verb do and have change only in the present form. Present form में change होती हैं. Does, have की, has, have. Two or more singular subjects joined by and take a plural verb. दो या दो से ज़्यादा singular verbs जब and उनको join करता है तो वो plural बन जाते हैं. जूलिया, एना एंड रचना आर बेस्ट फ्रेंड्स. जूलिया, एना एंड रचना तीनों क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, बट उनके बीच में हमने क्या लगा दिया? एंड लगा दिया. दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ की वो क्या यूज़ की? आर यूज़ की, प्लूरल यूज़ की. बट टू सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन थिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. दो सिंगुलर नाउन्स अगर एक ही पर्सन के लिए, एक ही थिंग के लिए यूज़ की जा रही हैं तो उसे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी पड़ती है. द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड. ऑनेस्ट हो गया एक हो गया डेडिकेटेड, बीच में आ गया एंड, पर हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज़. वाई? बिकॉज ये दोनों नाउन्स किसको रेफर कर रहे हैं? गांधी जी को, सेम पर्सन. रिमेंबर the article a and the is placed only with the one noun. Let us compare. The honest and the dedicated are missed by all. The honest जो ईमानदार होते हैं, the dedicated means होते हैं, that is plural. बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? are. एक क्वालिटी की बात की जा रही है. More than one singular subject joined by or, nor, either, or, neither, nor take a singular verb. अगर एक से ज़्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट ज्वाइन किए जाते हैं और, नॉर, इधर, और के द्वारा तो वो एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं. Neither Varun nor Rohan was present. No passenger or baggage was left unchecked. If the number of the subjects joined by or, nor, neither, nor, either, or is different, the verb should agree with the subject nearest to it. अगर इनमें से सब्जेक्ट अलग अलग है, मीन्स एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो किसे फॉलो करेगी? जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसे फॉलो करेगी. यू और द स्टूडेंट्स हैव ब्रोकन द विंडो. ईदर यू और द स्टूडेंट्स हैव ब्रोकन द विंडो. ईदर ही और आई एम. ही के साथ तो इज लगना था बट नियरेस्ट क्या था? आई था. आई एम रॉन्ग. ईदर यू और ही इज रॉन्ग. अब यू के साथ तो आर लगना था बट नियरेस्ट क्या है? ही. सो ही इज रॉन्ग. इफ द सेंटेंस हैज मोर देन वन सब्जेक्ट joined by and the verb used is plural.
सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और उन्हें कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड, तो वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल। ही एंड आई आर हैप्पी टू मूव इन अ न्यू टाउन, एंड आ गया, दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब फॉलो की। ही एंड दे आर, दो आ गए, सब्जेक्ट अगेन, एंड आ गया बीच में, सो हमने आर फॉलो किया। टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग अ सिंगुलर आइडिया टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर एक सिंगुलर आइडिया ही एक्सप्रेस कर रहे हैं टू सब्जेक्ट्स भी, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसे, ब्रेड एंड बटर इज हिज स्टेपल डाइट। ब्रेड एंड बटर इज, क्योंकि एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, एंड ब्रेड एंड बटर वन डिश है। The use of each every before the subject takes a singular verb. Each और every अगर हम सब्जेक्ट से पहले यूज कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करता है। ईच डे इज प्रेशियस, हर दिन मीन्स सिंगुलर। एवरी मैन एंड वुमेन ब्रिंग्स जॉय टू ह्यूमैनिटी मीन्स हर आदमी और हर औरत, सिंगुलर, दैट इज वाई ब्रिंग्स हैव बीन यूज्ड हियर। If the subject is one of plus plural noun, the verb used is singular. अगर one of के साथ plural noun आती है तो हम verb हमेशा singular use करते हैं। One of my cousins, cousins plural है, one of आगे तो हम verb कौन सी use करेंगे, plays, singular. Collective nouns like group, team, herd, committee, etc. take a singular verb. कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब। इफ ऑल द मेंबर्स इन ग्रुप टेक सिमिलर एक्शन, अगर सारे के सारे मेंबर सेम एक्शन लेते हैं तो सिंगुलर। बट प्लूरल वर्ब इफ ऑल द मेंबर्स टेक डिफरिंग एक्शन, अगर सारे अलग अलग एक्शंस लेते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। द कमेटी हैज पास्ड द बिल, अब कमेटी सबने मिलके काम किया, हमने सिंगुलर यूज किया। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, आर क्योंकि डिवाइड हो गए, सेम काम नहीं किया, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। डू नॉट यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब फॉर अ कलेक्टिव नाउन इन द सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस में दोनों सिंगुलर या प्लूरल वर्ब्स यूज नहीं होंगी। द कमेटी वर फर्स्ट डिवाइडेड ऑन द इशू बट नाउ इट अग्रीज, यहाँ पे वर क्या है, प्लूरल है। agrees क्या है, सिंगुलर है, that means this sentence is wrong. The committee were first divided on the issue but now it agree, that means were भी plural है, agree भी plural है, then this statement is right. Certain nouns like news, physics, furniture, measles, etc. that appear in plural form, ऐसा लगता है ये plural है but are singular इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर है मीनिंग में और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। द न्यूज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी डे एट 8 PM. न्यूज इज, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। सर्टेन नाउन्स लाइक spectacles, pants, shoes, scissors, trousers, etc. are always plural unless preceded by a pair of. स्पेक्टिकल्स, पैंट, शूज, सीजर्स और ट्राउजर्स, ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल हैं जब तक इनके पहले अ पेयर ऑफ नहीं आ जाता। हर शूज आर, शूज प्लूरल है, आर टेरिबली कंफर्टेबल। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ आ गया तो अब हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, वेट और अमाउंट टेक अ सिंगुलर वर्ब। वर्ड्स जो कोई फिक्स डिस्टेंस, वेट या अमाउंट दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हमेशा। 1000 रुपीज इज अ लॉट ऑफ मनी, क्या आ गया यहाँ पे, अमाउंट आ गया। 20 miles इज अ कंफर्टेबल डिस्टेंस टू ड्राइव, इज आ गया डिस्टेंस के साथ। 5 quintals of rice is sufficient to feed many hundred people. So यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, वेट आ गया, so is. The verb in the relative clause must agree with the subject qualified by it.
रिलेटिव क्लॉज में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ क्वालिफाई होनी चाहिए. कैसे? आई हु एम पुअर कैन नॉट अफोर्ड एन एंड्रॉयड फोन. आई के साथ क्वालिफाई किया एम वर्ब ने. If a subordinate conjunction is used to join more than one subject, the verb agrees with the subject of the main clause. अगर एक subordinate conjunction यूज की गई है एक या एक से ज़्यादा subjects को join करने के लिए, तो verb हमेशा जो main clause की subject है उसके accordingly यूज किया जाएगा. The general as well as his soldiers was captured. तो जनरल के लिए यूज किया गया was captured. ये मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है. इफ अ सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ क्लोज और अ फ्रेज, द वर्ब शुड बी इन अग्रीमेंट विद द प्राइमरी सब्जेक्ट. अगर एक सब्जेक्ट के बाद कोई भी क्लोज या फ्रेज आती है तो जो वर्ब है वो कंप्लीट एग्रीमेंट में होनी चाहिए प्राइमरी सब्जेक्ट के साथ. कैसे? द ड्रेस विच द मदर गेव हर चिल्ड्रन इज प्रेटी. द ड्रेस के लिए यूज किया गया इज. If a sentence includes the word none, the use of the verb depends on the sense, singular or plural, in which none is used. अगर एक सेंटेंस में none word आता है तो डिपेंड करता है कि हम verb कैसे चूज करेंगे कि none का यूज किस ढंग से किया गया है. None of the boys were in the class. Boys के साथ plural. I asked for a servant but none was there. So a servant के लिए was. तो डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है. इफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू नेम अ ग्रुप विद सिमिलर क्वालिटी, द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल. अगर एक एडजेक्टिव यूज किया जाए, एक ग्रुप के नाम लिया जाए जिसमें सेम क्वालिटीज हों, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है. द रिच आर यूजुअली एरोगेंट. रिच क्वालिटी. द ब्लाइंड नीड क्या है? प्लूरल है. नीड्स होता तो सिंगुलर होता. The blind need a lot of care. So students, we have discussed this chapter in detail and I hope each and every point is clear to you. Right? So now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.